So this is the first chapter which we are doing. Just like I said before, chapter 6, I'm going to skip right now, and 5, which you have not done. So we are starting from here. This is where your course officially starts from. And in the meanwhile, if we get time, we will try and cover up those topics. Okay? But first we need to cover these things. Financial assets. This is the first thing we are going to do. Any idea what are financial assets? Any idea? Class. What are financial assets? Any idea? No idea? At all? What are assets? So that give you benefit in future. That gives you some benefit in future. Okay. And how many types of assets have you started so far? Current and non-current. Okay. Current are? Less than a year. Less than a year? Like for 1 year. For 1 year? They last for 1 year. They last for 1 year? Their lifetime. Their lifetime is 1 year. तो इसका मतलब ये है कि give me an example of current asset. Give me one example of current asset. Prepaid rent. Sir, you were toothpaste. Toothpaste. Okay, that's a good example. Toothpaste. So toothpaste is a current asset and it lasts for 1 year. Okay? So does it last for 1 year? No, sir. It will have a shelf life for at least more than 1 year. Or at least a year. Consume. Oh, so what if I do not consume my toothpaste? No, sir. Expired. Expired. Toothpaste will not expire in 1 year, at least according to my knowledge. Check कर लीजिएगा जब जी सर करंट एसेट में नहीं होगा वो फिर एसेट में आती है लेकिन टूथपेस्ट तो करंट एसेट में है आपको डेफिनेशन गलत बता रहे हैं मुझे लुक एट योर डेफिनेशन व्हाट आर यू सेइंग व्हाट इज अ करंट एसेट वंस अगेन व्हाट इज अ करंट एसेट डिफाइन हाउ डू यू एक्सप्लेन अ करंट एसेट व्हाट्स अ करंट एसेट जी that gives an instant benefit. instant benefit okay now you are talking instant benefit और instant का क्या मतलब होता है instant कॉफी जिस तरह होती है सर जो कल के काम है परसों के काम सिर्फ कल और परसों के काम एक हफ्ते में काम है एक हफ्ते में काम एक साल एक मंथ एक मंथ एक साल या एक साल एक मंथ एक साल में बहुत फर्क है एक मंथ है और एक साल 12 महीने सर हमने जितना एक पढ़ा साल है करंट ऐसे बोल रहा है जिसकी लाइफ 1 ईयर तक चल सकती है लाइफ 1 ईयर here out life is not the word जी नहीं not the lifespan that can expire in 1 month 1 year sir नहीं expire is not the word utility utility so is utility a word which you have studied over here in accounting the word utility or is it something which is more economic in nature give me that word which I am looking for sir cash cash is an example of a current asset but how would you say or how would you say that cash is yes cash एक current asset है लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे current assets हैं और इनमें कोई feature है जो common है तो वो क्या है sir liquidity once again सही है liquidity is fine but I am looking for something else you are missing one thing थोड़ा जोर डालो कभी-कभी जोर डालते हैं दिमाग पे खैर आज थोड़ा सा जोर try to recall the definition it can be easily benefit change sir ठीक है लेकिन बेसिक एक बहुत ही बेसिक किस्म का फीचर है बहुत ही बेसिक किस्म का वर्ड है which I am looking for and somehow you are not giving me that word okay expected benefit now we are talking a little bit expected benefit इसको थोड़ी देर बाद वापस आते हैं ठीक है okay so let's move on we were talking about financial assets now ठीक है हम लोग कहते हैं कि financial assets क्या चीज है okay so now financial assets क्या चीजें हैं उस पे आते हैं थोड़ा और फिर देखते हैं कि what are financial assets which we'll be dealing over here in this chapter उससे पहले somebody talk about cash okay somebody talk about cash so cash is a asset is a current asset and it is the most liquid ठीक है we talked about liquidity as well okay it is the most liquid asset that's why when you will be listing your current assets in the order of liquidity so it will be at the
top. Okay, ये भी clear हो गया. Now, how much of this cash would you need? How much of this cash you would need in your business, let's say, or in any business for that matter? किसी भी business में कितना cash चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 million, 2 million, millions, billions, trillions, trillions. जिससे एक्सपेंस कवर हो सकता है, जिससे एक्सपेंस कवर हो सकता है, expense cover हो सकता है. Expense, एक्सपेंसेस expenses, एक ही बात है. Expense. Okay, so expense is what? Expense is what? Sir, rent Acha. expense, salaries. Salary, rent, utilities, liabilities. Okay. Now we are talking liabilities. लेकिन ये दोनों तो चीजें एक नहीं है. No, sir. तो आपने तो कहा कि एक्सपेंस कवर हो सके फिर किसी ने कहा नहीं लायबिलिटीज. तो कितना पैसे होने चाहिए? इतने पैसे होने चाहिए कि एक्सपेंस कवर हो सके या इतने पैसे होने चाहिए कि लायबिलिटीज कवर हो सके? Like दोनों. कि हमारा बिजनेस जनरेट हो सके, हम रेवेन्यू बना सके, फिर उसके बाद जो एक्सपेंसेस है वो तो अलग देखा जाएगा. वो अलग देखा जाएगा. Okay, just think of a situation. You have cash with you, Yes. okay? And okay, let's talk about this expense. Electricity expense. Electricity expense. Electricity expense. How does it normally work? How does normally electricity expense work? किस तरह काम करता है ये? मैंने स्विच ऑन किया तो क्या मैं उसको पैसे दूंगा? No. तो Monthly bill. monthly bill, Yes. which I would get after a month, and then I will have to pay it instantly. No, sir, you will have to. Then I will have to pay ड्यू डेट, within the due date. Within the due date. So when I get the bill, so when do I actually record this electricity expense? When I switch on my light or when I switch on my machine and it starts using electricity? When you pay the bill, when you're paying the bill, When I pay the bill. Yes. when you're paying, when you're, when you get the bill, so then you get the expense and then you have to pay that. When I get the bill. Okay, when I get the bill, what would be the journal entry which I'll make? Which I'll write? How would I record it? When you pay the bill actually. When I pay the bill actually. So when I pay the bill, what would be the रेंट पेबल, Electricity. one by one. एक वर्ड में. Electricity expense. Electricity expenses को क्या लिखूं? Bill expense or electricity. किधर लिखूं इसको? Credit में. Credit. Sir, इसको डेबिट करेंगे और Debit में करेंगे, credit में cash जाएगा. क्रेडिट में कैश. Okay. So electricity expense, debit, cash, credit. Yes. Okay. About बिल पेबल, bill pay. Bill pay. अच्छा. Rather than bill payment, let's write it as electricity pay. Okay. Okay. Write it as electricity payment. Right. Okay. So this is what we normally do when we get an expense. Okay. Or when we come to know about the expense. So it's not when you start your machine and it starts using electricity that you would charge it as electricity expense. It's when you get the bill, you will write it, you will record it as electricity expense. But since you are not paying the bill on the very same day, you normally would write it as electricity payable. And when you pay the bill, you will write it as कैश. Expense. expense. सीआर का पूछना क्रेडिट का. Payable receivable. Serious masla hai. सर्विसेज रेवेन्यू. Cash and then payable. Cash and then Yes, debit, cash debit and then payable. cash debit. Cash No. credit. Cash credit. Cash credit and Debit in debit what? payable. Payable. Electricity payable. Electricity Payable. payable. Debit. So that whatever payable you have created over here, whatever payable you've created over here, Yes, sir. a liability, it will be cancelled. सही है ना? सही है ना? ये होगा ना? Yes. आपने एक दफा क्रिएट किया, this is your account, electricity payable, expense payable जो आप लिखना चाहते हैं, ये पहले यहाँ से हुआ credit, let's say for the amount of 100, okay, और यहाँ पे मैंने लिख दिया electricity expense,
ठीक, and when you actually pay it, you will credit cash, ठीक, कैश हो गया क्रेडिट यहाँ पे 100 रुपीज से, और इसको आप कर देंगे डेबिट, यहाँ पे आपने इसको डेबिट किया, यहाँ पे आप इसको लिख देंगे डेबिट, एंड डिस्काउंट विल फिनिश अप, ठीक है, बैलेंस हो गया दोनों, फिर इसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर दोबारा यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, फिर कर देंगे, ठीक, बट दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड इट. सो एक्चुअली you are not paying your expenses, you are paying your liabilities. So how much cash should a business have? Business should have enough cash so that it can pay its bills. Now there can be different bills, electricity, example these जो हमने दी, they can be anything. So in other words, you should have enough cash with you ताकि आपके पास जो भी चीज आए, any liability that arises, you can pay it off. जी. Sir, liabilities में bills में हाँ, liability, इसलिए मैंने word use किया कि so that whenever a liability arises and it comes to you to be paid, you have enough cash to pay off your liability. ठीक है? तो अगर आप अपनी liability को pay कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि you are a, looking for another word, you are a liquid organization. ठीक है? या you have liquidity. और अगर आपकी liquidity नहीं है, then you can go back. ठीक है? Okay. हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी टेक्निकल टर्म्स हैं उसी को इस्तेमाल करें जो यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं अकाउंटिंग के अंदर, उसी को इस्तेमाल करें. ठीक? साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा, अगर आपको भूल गई ये चीजें तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, बट यू शुड नॉट forget these things, क्योंकि आगे दिस इज योर सेकंड कोर्स, आगे फिर एक और कोर्स है और अकाउंटिंग का, और शायद उसके बाद कोई और कोर्स नहीं है. आई थिंक यू ओनली हैव 3 कोर्सेज. क्लियर सो फार? नहीं मिला वो आप लोग कह रहे थे करंट आ रहे हैं आपके सारे आंसर्स क्लियर हो गए. ठीक, ओके, क्लियर सो फार? क्लियर सो फार. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. अच्छा, अब हम लोगों ने अब आ रहे हैं, ठीक है, अब हम लोगों ने कहा कि ठीक है कैश कितना होना चाहिए वो हमने बात कर ली. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस फाइनेंशियल एसेट्स. अब दोबारा वापस अपनी शुरू की डिस्कशन पे गए. वी सेड कि व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स, और फिर वो हमें सॉल्व नहीं होता तो सो वी टॉक अबाउट एसेट्स. Okay, so now what are financial assets? आप लोगों ने, you have no idea what are financial assets. So let me tell you there are 3 financial assets. Okay, normally which we have: cash, short-term investments, and receivables. Now, anything common among these 3 financial assets? ये कुछ समझ आएगी कौन से assets? ये current assets हैं और liquidity ज़्यादा है. इनकी लिक्विडिटी ज्यादा है. तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट करूँ, if I have to list my current assets, so these three okay, so these three assets would be at the top. Yes. At the top. So these 3 are the most liquid assets. ठीक है? ये तीनों सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट. कौन कौन से? कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल्स. ये सब आपको पता है ना कि क्या चीज है? Yes. सब आपको पता है क्या चीज है? We will be studying these 3 assets in detail, in great detail in this chapter. So this chapter is all about these 3 assets: cash, short term investments, and receivables. सही है? स्टार्ट करें, काम स्टार्ट करें भी. स्टार्ट करें क्लास. Yes. Okay, so let's start here. And why is it? सर ये प्रोजेक्टेड टेढ़ा लगा. अच्छा, इसका कुछ हो सकता है नहीं? सर चलो छोड़ो. We will do that after the class. ठीक है? Try to fix it up. हाँ, इसको बाद में फिर fix up कर लीजिए. Okay. अब let's come back to our discussion again कि कितने पैसे अब होने चाहिए. ठीक है? Let's come back to the liquidity point. कि कितने पैसे मेरे पास होने चाहिए? How much cash I should have with me in my business. Now, ये सारा प्रोसेस है ना, लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, काम चल रहा है, काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, हो क्या रहा है उसको जरा पढ़ो. यू मैन्युफैक्चर समथिंग और यू हैव सम सर्विस और यू हैव सम गुड. अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न है आपके पास पहले से पड़ा होगा. इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यू विल मैन्युफैक्चर इट. ठीक है? अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है. सो व्हाटएवर गुड और सर्विस यू हैव, you will be actually giving that to your customers. ठीक है? Your customers. And normally you will find out कि normally not all sales are on cash. हर चीज कैश में नहीं है.
कुछ चीजें बल्कि बहुत ज्यादा आपकी सेल्स वुड बी एक्चुअली Account receivable. on credit which are accounts receivable. सही है? Understand this thing? Yes. You understand this thing? Account receivable. तो अगर account receivable होगी, so do I have liquidity now with me? Do I have liquidity? Do I have cash with me? No. Yes. Do I have cash with me? Sir, नहीं. Yes. देखें, अगर मैं आपको ये मार्कर बेचूं और आप मुझे कहें सर मैं आपको एक हफ्ते बाद पैसे दूंगा, एक हफ्ते बाद, तो क्या मेरे पास अभी अगर कोई और मेरा कर्जदार आ जाए, मतलब जिससे मैंने कर्जा लिया, my creditors, ठीक है? If my creditors come to me or if a liability arises, बिजली के बिल की आज लास्ट डेट है, आपने मुझे कहा मैं पैसे एक हफ्ते बाद दूंगा, तो will I be able to pay off my liability over here? No, sir. नहीं ना, I won't be, क्योंकि मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है इस वक्त, ठीक है? हाँ, इस जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है इसको मैं लिक्विड करूं, उसको आगे पढ़ेंगे कि देयर आर वेज टू डू दैट, तो फिर हो सकता है नहीं तो अदरवाइज आई डोंट हैव कैश। ओके, सो व्हेन यू गेट अकाउंट रिसीवेबल यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू कैश। नाउ सो फार you've been talking about cash as cash only, कैश को बॉडी पढ़ते हैं ना। Yes, sir. अब हम पढ़ेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं आसानी के लिए इसको यूं लिख देता हूं, ठीक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट इसका क्या मतलब हुआ? कैश इक्विवेलेंट जो कैश के बराबर है, सिंपल वर्ड्स, Alternate of cash. ऑल्टरनेटिव ऑफ कैश, ठीक? सो इट्स एक्चुअली कैश, और अगर उसको आप एक ही जगह पर लिख रहे हैं, एक ही अकाउंट टाइटल बना रहे हैं, अब तक आपने अकाउंट टाइटल बना था कैश एट द टॉप, द मोस्ट लिक्विड एसेट, नाउ वी से इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो व्हाटएवर इज क्लोज टू कैश or it's almost like cash, we will add over here and we will call this whole account as cash and cash equivalent, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके, अच्छा अब आगे चलते। मैंने व्हाट्स योर नेम? मंजूर सर। मंजूर पे मैंने ये मार्कर भेजा था, मंजूर ने कहा एक हफ्ते बाद पैसे दूंगा, ठीक? So I want to get that money as soon as possible so that I can pay off my bills, liabilities, I can pay off my liabilities। अब उसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर, ठीक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ये अकाउंट रिसीवेबल है इस वक्त, मैंने इससे लेने हैं पैसे, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको मैंने मंजूर को मार्कर बेचा, इसको मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया, 20 रुपए इसने मुझे दिए, मेरा बिल आया आज, मेरे पास 20 रुपए आ गए हैं, मेरा बिल है सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए मैंने उसको बिल को पे कर दिया, सो आई एम लेफ्ट विद 15 कैश। मैं चेक करता हूं समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अब ये चीज आपने पढ़ी होगी, हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग? Cash flow. Yes, sir. You understand what this is? Yes, sir. What does it tell you? Your income. Then- क्या नाम है? अच्छा, let me go back to my first question again. Do you know what this is? No. So that's why I told you कि अगर नहीं कोई चीज पता तो मुझे बताएं ताकि मैं आपको बताऊं कि वो क्या चीज है, ठीक है? ओके, सो हम जब कल पूछ रहे थे कि आपने क्या क्या पढ़ा है तो आप मुझे बता रहे थे आपने ये पढ़ा, आपने ये पढ़ा, आपने ये पढ़ा, and somebody talked about balance sheet and income statement, things like this. इसको बोलते क्या है? Balance sheet, income statement, Financial financial statements. statements. Good. So that means you know what are financial statements. Now tell me what are financial statements? या कौन-कौन सी statement are financial statements? दो के नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं, दो के नाम आप मुझे बता दीजिए। Balance sheet. बैलेंस शीट, इनकम ऑर्डर से जरा जाए Income कि ऑर्डर में पहले क्या चीज बनेगी फिर उसके बाद क्या चीज। Income statement. Okay, so first you have your income statement which is also called as Balance sheet. No. Financial. also called as profit and loss account. नहीं पढ़ा था. यस सर। ये टर्म नहीं सुना? आज तक कभी नहीं सुना? Okay, so this is an American term, income statement, and this is the alternative term, alternative Pakistani or British term, profit and loss account. ठीक है? सही है? Yes, sir. We are good? दोनों एक, ठीक है? Okay, so income statement.
is one of those financial statements which you have. Then Balance sheet. balance sheet. Okay, good. Balance sheet. Okay. And then income तो हो गया. Cash flow statement. ये क्या होगी? चलें सबके बारे में बात करते हैं एक मिनट. And the fourth one is जो हमारे पेपर बैलेंस शीट पहले बताया नहीं नहीं एंड पे क्या होता था यार सोचें. थोड़ा देखिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे, इस तरह नहीं बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा. थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा. ठीक है, कभी कभी इसको इस्तेमाल किया करें, अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है. खून जाता रहता है, आता रहता है, सर्कुलेशन होती है. Income summary. That's not part of financial statement. No idea, class? Okay. No idea? No, sir. बता दो? Okay. So it is called as statement of changes in owner's equity. याद है? Yes. नहीं याद है? नहीं सर ये हमने नहीं पढ़ा था. याद है? Okay. अच्छा. Do you understand what is income statement? What does it tell you? Expenses and revenues, and then Your total. the resultant, which can be a which Your can be, earning Profit. after the profit and loss. which can be a profit or a loss. That's why it is also called as profit and loss or profit and loss statement. Do not call it as a loss. Okay, एक चीज ये होगी. उसके बाद जाए balance sheet. So what is a balance sheet? Or what does it show? Balance. सर बैलेंस शीट पे हमने और वो एक शीट होती है जो बैलेंस शीट. So what is balance sheet class? Balancing the credit and debit. But ये इसकी formal definition तो ना हो. Assets and liabilities. Assets and liabilities. So asset and liabilities, what is asset and liabilities? और एक चीज छोड़ दी. Equity, owner's equity. हाँ, assets, liabilities and owner's equity. Okay. अच्छा, चीजें पूरा बोला करें, आप बीच में छोड़ा ना करें. That shows कि आपको मुझे लगेगा कि आपको वो चीज नहीं है. Okay. So a balance sheet will tell you about your assets and liabilities and owner's equity. ठीक है? तो फिर ये क्या शो करेगा? ये क्या शो करेगा? Position. क्या? कैसी position? Financial position. Financial position of Of the company. organization, of the organization. आगे Of the firm. ठीक है, आगे Of the individual, sir. Of the individual. ठीक है, वो सब बातें सही है. अगर इंडिविजुअल अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो इंडिविजुअल फर्म हो गया, तो फर्म, कंपनी हो गया तो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन. आगे for a It gives us the direction, like a position for the future. for the future. Or in which direction are we going? Decision maker. ना Profit or loss? Deal concept. बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस पता है. No. मंजूर Sorry. क्या हुआ? Take home profit and Profit? Why are you saying profit over here? We have already discussed that profit is over here. Profit is. happy for that. नहीं यार. No sir. Balance sheet will tell you about your financial position, which is assets and liabilities and owner's equity, which means how much do you, assets mean how much do you own and how much do you owe to outsiders and your owner's equity भी आ गई, liabilities भी आ गई, at a specific date. ठीक है? At a specific date, which means if you want to, you can make 365 balance sheets in a year and 366 in a leap year. आप रोज की एक बैलेंस शीट बना सकते हैं, क्योंकि ये एक दिन का पोजीशन आपको बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, एक दिन की बस. जिस दिन वो बनेगी उस दिन की पोजीशन, सिर्फ उस दिन की पोजीशन बता रही है कि आज के दिन व्हाट आर माय एसेट्स, कितने एसेट्स हैं मेरे पास, व्हाट आर माय लायबिलिटीज एंड व्हाट आर द ओनर्स इक्विटी, हाउ मच आई ओwe. क्लियर हो गया? Whereas an income statement will tell you about the profit Or loss. or loss of the organization, company, firm, individual, whatever you want to. फिर आगे
फॉर होल ईयर। जरूरी है कि होल ईयर हो? क्या होल ईयर के अलावा किसी और की इनकम स्टेटमेंट नहीं बन सकती? हाँ, तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे? फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ठीक है, सही, क्लियर? तो ये फॉर अ पीरियड हो गई, ये एट अ स्पेसिफिक डेट हो गई। अब आते हैं इधर, व्हाट डज दिस शो? कैश फ्लो। कैश फ्लो, कैश तो कैश होता है ना, फ्लो के क्या मतलब? How much money are you actually earning, sir? जा रहा है और और कितना आ रहा है। कैश इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट विल टेल यू अबाउट द कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वंस अगेन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड आप रखें, एक हफ्ता रखें, एक महीना रखें, क्वार्टर रखें, एक साल रखें, 2 साल रखें, 10 साल रखें, वो आपकी मर्जी, जितने के लिए आप बनाना चाह रहे हैं वो आपको बता के देंगे। ओके, ये भी हो गया। एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी विल टेल यू अबाउट, इसका तो नाम में सब कुछ लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। ये आपको बताएगा you have invested in how much the capital has लेफ्ट ओवर। changed, changes, कितना चेंज हुआ है, ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, that is another story. If it has been used up somewhere तो भी पता चल जाएगा, if it has been withdrawn तो भी पता चल जाएगा, if it has been added, कुछ और आपने ऐड किया वो भी पता चल जाएगा, सब कुछ आपको स्टेटमेंट के अंदर पता चलता है। ठीक है, because it tells you about the change, ज्यादा हो रहा है या कम, और कितना कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कितना कम हो रहा है, किस किस तरीके से ज्यादा हो रहा है, किस तरीके से कम हो रहा है। So this is the statement of changes in one's equity, and all of these 4 statements would make up your financial statements. Got the idea? We need to work on our basics. ठीक है, and you need to remember these things. जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ, आप सबको वो चीजें आनी चाहिए। जो जो चीज यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, it should be with you either in your notes or somewhere in your mind so that you can reproduce that in the exam. ठीक है? I wouldn't mind, if it's not on the slide, it does not mean it's not in your syllabus. If I've taught you, it's in your syllabus. Okay, so let's move on. वापस आते हैं। तो हमने कहा कि मंजूर को मैंने मार्कर बेचा, मंजूर ने मुझे 20 रुपए दिए, 20 रुपए में से 5 रुपए मैंने अपने बिल दे दिए, बाकी रह गए मेरे पास 15 रुपए। अब मैं जाता हूं, जाके ये स्टेटमेंट देखता हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज फॉर दी प्रीवियस ना, जब टाइम खत्म होगा तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा ना उसका। हमने कहा इट्स फॉर अ टाइम पीरियड खत्म हुआ, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया। नाउ आई कैन आल्सो मेक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट for the future, which will be called as budgeting or forecasting or estimating cash flow. ठीक है, ये मैं क्यों बनाता हूं? ये मैं इसलिए बनाता हूं कि मुझे पता चले कि यार अगले एक हफ्ते में मैंने किसी से कोई पैसे लेने हैं या किसी को कोई पैसे देने हैं, उसकी एक स्टेटमेंट आ जाए। बात वही है, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, लेकिन वो नहीं जो हो चुका है, वो जो होने वाला है। अब मुझे डिटेल पता चल गई, 15 रुपए मेरे पास पड़ेंगे जो मैंने मंजूर को सेल किया था। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखता हूं फॉर द फ्यूचर कि मैंने किसी को कोई पैसे तो नहीं देने, एंड इट सेज कोई नहीं देने, अगले एक हफ्ते में कोई नहीं। अब एक हफ्ते तक मेरे पास 15 रुपए फालतू है, ठीक है, सो व्हाट डू आई डू? उसको फालतू अपने पास रख दूं, बच्चे देंगे? I actually invest. Okay. So I actually invest. If somebody needs to call, they can call. Okay. So I actually need to invest. लेकिन अब अगर मैं उस इन्वेस्टमेंट से 15 रुपए का मैं एक प्लॉट ले लूं रेगी में, और रेगी जो है उसको बनने में 20 साल लगे, तो मैं 20 साल तक वो 15 रुपए मेरे बंद रहे। So what can I do? It's a bad idea. So then excess cash would need to be invested somewhere where I can liquidate that quickly. ऐसी जगह पर जहां पे कि उसको वापस कैश में कन्वर्ट कर सकूं, क्योंकि मुझे एक हफ्ते में तो नहीं चाहिए, लेकिन उससे अगले दिन मुझे चाहिए पैसे। मेरा गैस का बिल आ जाएगा, I have a generator in my factory जो कि गैस से चलता है, तो मेरा गैस का बिल आ जाएगा, उसको पैसे देने होंगे।
ठीक है, बल्कि गैस का बिल आया हुआ है, उसका ड्यू डेट आ जाए, उसको मैंने पैसे देने होंगे, तो मेरे पास सिर्फ 7 दिन है जिसमें मैं इस पैसे को इस्तेमाल कर सकता हूं। सो आई इन्वेस्टेड टेम्पररीली एंड द इंस्ट्रूमेंट which can do that or the place where it can be invested is called as marketable securities. Why? Because it's a Short term. short term investments long term की होती हैं, but long term investments would go to what place? तो उसको क्या long term investment को क्या, कौन से assets? Non-current assets और fixed, ठीक है? Clear so far? सही जा रहे हैं? Okay, ये आ गया। अब अगर 5 दिन गुजरे, 6 दिन गुजरे, 7 दिन गुजरे, मेरा गैस का बिल आ गया, इट्स अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आई कैन once again convert it back to cash and I can make payment for my sweet gas bill. Got the idea? Yes, Easy? sir. Okay, that's good. Okay, so let's move on. Okay. अच्छा, अब ये चीज भी हो गई। अब third we talked about receivables. ठीक है, आपको थोड़ा जनरल आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड वेयर इज दैट, आपके साथ कौन बैठा हुआ था? हाँ, लुकमान, वेयर इज ही? अच्छा, लुकमान एक्चुअली आस्क्ड मी अ क्वेश्चन यस्टरडे, तो उसका क्वेश्चन आंसर करने वाला था, लेकिन अब वो है नहीं, उसको मैं फिर बात करूंगा, ठीक है, जब आएगा जी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो नाउ we've talked about cash and cash equivalents, we've talked about short term investments a little bit, ताकि आइडिया हो जाए कि क्या चीज है। Let's talk about receivables. Receivables, Manzoor is a good guy, I sold a marker, you are also okay, so tell me about a bad guy in the class. Sir, ये Ali, okay, so Ali is a bad guy, so I sold a marker to Ali, okay, I actually sold 2 markers to him, तो 20 की बजाय इसने 40 रुपए दिए, ठीक है। मैंने कहा यार मंजूर अच्छा बंदा है, मंजूर ने पैसे दे दिए, अब्बास भी अच्छा बंदा है, इसने भी मुझे पैसे दे दिए थे। मैं कहता हूँ चलो यार अली भी अच्छा बंदा होगा, इसको 2 मार्कर बेच दो। इसको मैंने 2 मार्कर बेच दिए, 2 मार्कर बेच दिए। अब अली ने भी कहा 1 हफ्ते बाद पैसे दूंगा, मैं कहता हूँ ठीक है यार, इससे भी 1 हफ्ते बाद दिए, उससे भी 1 हफ्ते बाद दिए, 1 हफ्ते बाद दे देगा। 1 हफ्ते बाद आई गो टू अली एंड आई से अली पैसे तो नहीं, It's not an answer, पैसे नहीं। ओके, अली कहता है कि सर बस 5 रुपए तो दे दो, बाकी बात ठीक है। So actually I am recovering my receivables but at a slow speed। फिर मुझे अब्बास कहता है, अब्बास मेरे पास आया, फिर दोबारा मार्क लेने। अब्बास को मैंने कहा यार there's a problem with अली, वो तो 1 हफ्ते बाद सिर्फ 5 रुपए उसने दिए मुझे। अब्बास से सर अली का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं, ये पहले ही पैसे लेके भाग गया। That's something very bad. Okay, so now it's a receivable. So receivables should not be talked as receivables in total, but they should be talked as, or they should be valued as net realizable value. कितना पैसे इसमें से वापस लेने नहीं है, मिलेंगे। Estimated collectible amount ना, लेंगे तो मैंने सिर्फ पूरे 20 ले, लेकिन अब्बास और फिर उसके बाद मंजूर आया, फिर मंजूर भी कहता है, फिर ऐसा ये सारे मेरे कस्टमर्स बन गए, सारे कहते हैं नहीं ये सही बंदा नहीं है, ठीक है, इसमें से 10% तो वो खा जाएगा, so 44 रुपए वो खा जाएगा, ठीक है। So now whenever I need to state my receivables, I will not say 40 rupees from Ali, उसको मुझे as 40 पूरे नहीं लिखने। अब मुझे पता चल गया है मेरी कैलकुलेशन से या कस्टमर के पास रिकॉर्ड से, ठीक, कि ये एस्टिमेटेड कलेक्टेबल अमाउंट इज नॉट 40, इट्स एक्चुअली 10% लेस, व्हिच इज 36। तो अगर मैं फिर अपनी बैलेंस शीट में लिखता हूं रिसीवेबल की अमाउंट, तो मैं 36 लिखूंगा, मैं 40 नहीं लिखूंगा। अब शुड नॉट राइट इट एज 40। Receivables are always valued at net realizable value, ठीक है, NRV। Of course it's an estimate, क्या पता ये सब झूठ बोल रहे हो और ये सच हो, ये मुझे 5-5 करके लेकिन सारे पैसे, तो ये एस्टिमेट है, ये तो बस मैंने एस्टिमेट लगा दिया क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन जो मिली उसकी बेसिस पे एस्टिमेट लगा दिया, ठीक है, मुझे सारे पैसे मिल जाए तो हो गया ये। मैं इसको दोबारा 40 करूंगा पहले,
और फिर इसको कलेक्ट करूंगा, एंट्रीज बताऊंगा, ठीक है। एंट्रीज अभी आएंगी सारी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंट्रीज राइट नाउ। फिलहाल हम एक जनरल सीख रहे हैं कि ये चीजें क्या है जी। सर हम तो इसको माइनस करते हैं ना बैलेंस शीट। मैंने भी माइनस कर दिया, 26 कर दिया। नहीं सर, हम इस वैल्यू को हाँ। माइनस करते हैं ना। हाँ, माइनस तो हमें करते हैं। मिलने नहीं वाली है। नहीं मिलने वाला, लेकिन ये एस्टिमेट है। माँ सेड इट्स एन एस्टिमेट, आई सेड यस इट्स एन एस्टिमेट, ठीक है। लेकिन अगर ये एस्टिमेट उल्टा हो जाए, इसकी एग्जांपल मैं पहले जमाने में ये देता था कि उन दिनों में कोई एक भाग गया था पाकिस्तान से, ठीक है। तो जब वो भाग के जाने लगा पाकिस्तान से, तो हमने ये कहा कि लेट्स से हमने उसको कोई कर्जा दिया या उसको चीजें बेची और वो पाकिस्तान से भाग गया, हो सकता है वापस नहीं आया, वो अभी रिसेंटली वापस आया, ठीक। तो वो जब वापस आया तो दैट मींस वो अब कलेक्टेबल हो गए ना, अब वो मिल जाएंगे पैसे। तो मैं दोबारा इसको बैलेंस शीट को रीइंस्टेट कर दूंगा, जब मुझे पता चल जाएगा कि वो मिल जाएगा, ठीक है, कंफर्म हो गया, या वो मुझे एक चेक दे दिया, वो मुझे कह देगा हाँ ठीक है ये पैसे दे, तो मैं दोबारा बैलेंस शीट में इसको दोबारा 36 से 40 कर दूंगा और फिर कलेक्ट कर लूंगा, रिसीवर को कम करके या खत्म करके कैश को ज्यादा कर दूंगा, ठीक है। एंट्रीज बताऊंगा आपको, डू नॉट वरी, अभी सिर्फ स्टोरी सुना रहा हूं ताकि आपको स्टोरी दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद आ जाए, ठीक है जी। और अगर ये 36 से भी कम है तो फिर फर्दर इसको और भी कम कर दूंगा। ये भी एस्टिमेटेड, ये सारी चीजें वंस अगेन सब एस्टिमेट है, जब एक्चुअल आएगा तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक। ओके, सो नाउ कैश इज ऑलवेज, कैश तो कैश होता है ना, कैश में तो इस तरह नहीं होता कि 50 के नोट के ऊपर 500 आप लिख दें, इट विल बिकम 500, सो इट विल बी कैश। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर एट देयर फेस अमाउंट, जो उसकी फेस अमाउंट है, जितने आपके पास हैं आप उतना बैलेंस शीट में लिखते हैं, ठीक है, उतना ही लिखते हैं ना, यस सर। ठीक। ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट जब मैंने की, मेरे पास 15 रुपए थे फालतू जो मंजूर ने दिए थे, और मैं गया स्टॉक एक्सचेंज और मैंने वहां पे जाके 3 शेयर्स खरीदे, 5 रुपीस ईच वे। आई बॉट 3 शेयर्स फॉर 5 रुपीस ईच, खरीद लिए। बैलेंस शीट अभी मैं नहीं बना रहा, अभी इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया, इसी तरह 15 रुपए में रिकॉर्ड कर दिया। अगले हफ्ते मैं बैलेंस शीट बनाने लगा, अगले हफ्ते जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं 15 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा इसको, बैलेंस शीट में 15 पे नहीं लिखूंगा, मैं उस दिन देखूंगा कि उस दिन जिस दिन बैलेंस शीट बनेगी उस दिन स्टॉक एक्सचेंज में इस शेयर की कीमत कितनी है। लेट्स से इट राइजेस टू 6, so now my investment has gone to 18, so I should write as 18 in my balance sheet। ये बाकी 3 रुपए जो है इसके साथ क्या करना है ये आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जब हम ये टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। एक किस्म का प्रॉफिट है मेरा, लेकिन रियलाइज अब तक नहीं, अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, क्या पता ये 4 पे चले जाए उस दिन, तो फिर मैं क्या करूंगा, 3 into 4 equals 12, 3 लॉस हो गया। सो वंस अगेन अनरियलाइज्ड लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन, अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस, इसके टेक्निकल टर्म्स हैं जो आगे जाके पढ़ेंगे। क्लियर सो फार? Clear so far? Going good? Any problem? Short break? Okay. So let's take a short break of 2 minutes and then we'll start with cash. Detail में cash पढ़ेंगे, उसके बाद detail में receivable और detail में short term investment. Pause. Okay class, let's start here. So now what is cash? Now we'll be talking about financial assets in detail. ठीक है? अब detail में अब cash and cash equivalent को पहले पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, उसके बाद इसकी एंट्रीज देखते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके साथ क्या क्या होता है, कैश के साथ क्या क्या हो सकता है, कैश में क्या क्या चीजें होती हैं, सो ऑल दीस थिंग्स। सो इट्स गोइंग टू टेक अस अ गुड 1 क्लास और 2, एक क्लास लग जाएगी इसमें। इसी तरह मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वंस अगेन अ गुड 1 क्लास, एंड देन 1 क्लास ऑन और 2 क्लासेस ऑन रिसीवेबल्स, ठीक है। इन सब पे एक 2 क्लास हमारी लगेगी, हम इनके क्वेश्चन देखेंगे और इनके कॉन्सेप्ट देखेंगे, इनकी जनरल एंट्रीज देखेंगे और उनके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। देखेंगे बैलेंस शीट में इसको कहां पर लिखना है, किस तरीके से। got it? Start करें? Okay, so now let's start. Cash. So actually the term is not cash, the term is cash and cash equivalent. So this is the whole term, ठीक है। अब टर्म पूरी ये है cash and cash equivalent, तो इसका मतलब first we need to look at this cash and then we need to look at cash equivalents, दोनों चीजों को देखना है। Okay, cash क्या होता है? पैसा, पैसा,
in the form of Paper money. paper money or coins, ठीक है? अब ये जो है ना ये बैंक बैलेंस ये भी एक्चुअली कैश है। तो अगर बैंक में जो पैसे हैं तो वो भी एक्चुअली कैश है। So coins and plastic money, ठीक है? अब वो भी कैश है। So coins and paper money, Checks. बैंक क्रेडिट चेक्स, ठीक है? चेक्स भी कैश हो गए, ठीक? ये पुराने जमाने की बातें हैं जब ट्रेवलर्स चेक्स एक इंस्ट्रूमेंट होता था which we used to carry with us instead of cash। हम कैश के बजाय ट्रेवलर्स चेक्स रखते थे और उसका फायदा ये होता था कि कैश कैन बी स्टोलन ना। अगर वो आपसे कोई ले ले तो आप ये तो नहीं कह सकते ना स्टेट बैंक को कि ये नंबर का कैश मुझसे कोई ले गया इसको रोक दे, नहीं रोक सकता। बट ट्रेवलर्स चेक्स कुड बी ट्रेस्ड, वो ट्रेस हो सकता है क्योंकि वो कोई बैंक बना के देता था, कोई बैंक, और उस बैंक के ऊपर जब मैं बनवाता था तो मैं उसको पैसे देता था, वो मुझे ट्रेवलर चेक देता था जिसके ऊपर नंबर होता था। तो मेरा बैंक को पता है कि ये ट्रेवलर चेक मैंने ही दिया है, ठीक है? तो कल को अगर मैंने मुझसे कोई ये जबरदस्ती ले ली तो मैं उसको रोक सकता हूँ बैंक को कह के कि इस वाले ट्रेवलर चेक को रुकवा दे, क्योंकि वो वापस बैंक के पास लेकर आएगा उसके बदले में कैश लेने के लिए। तो जब बैंक के पास लेकर आएगा तो बैंक उसको रोक देगा कि नहीं ये तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड, ठीक है? तो फायदा था, सेफ्टी का फीचर। So that's why traveler checks. भी आजकल तो you need a, there's no need, you plastic money, yeah, credit card, debit card, जाएं किसी और कंट्री में जाएं ATM and you get cash, or you go to a vendor, credit card वो करें and you will get the हाँ ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं आप अपने आप को खुद ही, ठीक है? आप बाहर जाएं लेकिन फिर you would need an account for that. Okay, so bank credit card sales, yes, this is also cash. So if a customer comes to me and performs a transaction of a bank credit card sales, so it will be regarded as cash। उसको मैं कैश में लेकर आऊंगा। हाँ ये अलग बात है कि मुझे ये पैसे कुछ अर्से बाद मिलते हैं, ठीक है? नॉर्मली एक मंथ में मिल जाते हैं, 2 हफ्ते में मिल जाते हैं। हाँ फिर आगे आप जाके ये भी देखेंगे कि इफ आई नीड इंस्टेंट कैश इंस्टेड ऑफ माई क्रेडिट कार्ड रिसीट, मैं वेंडर हूँ, आप कस्टमर हैं, आप लाके क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, मैं वो रसीद अपने पास रखता हूँ लेकिन मुझे पैसे चाहिए, तो मैं उस रसीद को आगे पढ़ेंगे हम कि देकर उसके बदले में वो पैसे पहले ले सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें से थोड़े से पैसे डिडक्ट हैं, ठीक है? ओके, ये डिटेल में पढ़ेंगे, इसी ट्रांजैक्शन भी पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज भी। ओके, ट्रेवल चेक्स क्लियर, बैंक क्रेडिट कार्ड सेल्स, कॉइंस एंड पेपर मनी, चेक्स आर कैश एज वेल। मुझे अगर कोई चेक दे दे इंस्टेड ऑफ कैश, ठीक है, प्योर कैश में जाए कोई चेक दे दे, इट्स एज गुड एज कैश। मैं ले जाके बैंक से उसको कन्वर्टेड इनटू कैश या अपने अकाउंट में डाल दूंगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। मनी ऑर्डर्स वंस अगेन थोड़ा सा प्रिमिटिव है, आजकल नहीं इस्तेमाल हो रहा, ठीक? मनी ऑर्डर्स आपने किसी को पैसे भिजवाने थे, सो यू कुड डू दैट यूजिंग मनी ऑर्डर्स, बट नाउअडेज इट्स यूजलेस क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग आ चुकी है जिससे आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक? क्लियर सो फार? यस सर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। कैश तो हो गया, ठीक? और कैश में से डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे, सो कैश इज एनीथिंग which can be, there is something seriously wrong with this system and it's really slow. Okay, so cash is anything which the bank will accept as a deposit. यानी जो भी चीज आपसे बैंक ले लेके आपके अकाउंट में आ जाएगी वो कैश होगा। इसका मतलब अगर आप चेक देंगे वो भी आपके उसमें आ जाएगा, that is cash। आप अपनी क्रेडिट कार्ड की रिसीट देते हैं बैंक को तो वो बैंक के पास आ जाती है, बैंक उसको कलेक्ट करता है थ्रू फ्रॉम द अदर बैंक, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है आपके अकाउंट में आ जाएगा, सो दैट इज एज गुड एज कैश। तो एनीथिंग व्हिच द बैंक विल एक्सेप्ट एज अ डिपॉजिट इन योर अकाउंट विल बी कैश, वो कैश होगा, ठीक है? ठीक, क्लियर? लेट्स मूव ऑन। ओके, रिपोर्टिंग कैश इन द बैलेंस शीट। नाउ हाउ डू यू रिपोर्ट कैश इन द बैलेंस शीट? कैश या कैश इक्विवेलेंट किस तरह रिपोर्ट होंगे बैलेंस शीट के अंदर? उससे पहले let's find out, we are done with cash, let's find out what are these cash equivalents। वो कह रहे हैं ये कैश की तरह होता है, ये कैश की तरह होता है। तो कैश की तरह होता है तो ये है क्या? ये है क्या? ओके, सो इट्स कंबाइंड विद कैश ऑन द बैलेंस शीट। ये तो हमने बोल दिया कि इट्स एक्चुअली वन अकाउंट टाइटल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये दोनों एक साथ आते हैं। अच्छा, अब ये क्या है? सो इट इज समथिंग व्हिच कैन बी अ लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म में, बट इट कैन बी, इट मैच्योर्स इन 90 डेज ऑफ एक्विजिशन। 90 डेज के अंदर अंदर ये मैच्योर हो जाएगा।
खत्म हो जाए, मतलब पूरा हो जाए, ठीक है। आप लोगों को आइडिया है बॉन्ड्स का, बिल्स का? You have some idea about bonds? Yes. T bonds or T bills? Yes. Okay, good. So what are T bills or T bonds? नाम सिर्फ सुना, नहीं पता सर। नहीं पता। सर इसमें एडवांस सैलरीज आएंगी? Advance salaries. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से? ऑर्गेनाइजेशन ने सैलरी क्या करना होता है? Salary? So from point of view of organization, advance salary would be actually be a? Would actually be a? Would actually be a? Expense. Salary. Expense. Salary is an expense. Salary is an expense for the organization. So advance salary is a? Is a? Expense. एक एक्सपेंस है और अगर आप उसको पहले से पे करो, Expense payable. prepaid expense which is a asset. ठीक है? Good. Okay. So now you're thinking. ठीक है? So this is what I want you to do. Think. सोचें कि क्या चीज है, उसका नेचर क्या है। वो तब हो सकता है जब आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो। बेसिक्स स्ट्रांग होंगी, you will think. Otherwise आप रट्टे मारेंगे और शायद मेरे एग्जाम में रट्टे काम नहीं करते। Okay. So let's move on. Yes, it's an asset और कैश इक्विवेलेंट तो वो नहीं होगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है क्योंकि वो एक महीने के अंदर अगर इतना है कि एक महीने की तनख्वाह आपने उसको पहले से दिए तो एक महीने के अंदर हो जाएगा। एक महीने के अंदर अगर हो रहा है तो विद इन 90 डेज ऑफ एक्विजिशन में शो हो जाएगा। बट स्टिल I wouldn't classify it as a cash equivalent. I would say it's a prepaid expense. Okay, matures within 90 days of acquisition. ठीक है? And the most important thing, it has a stable market value. अभी थोड़ी देर पहले I gave you an example of a share, Yes, sir. and the price of share changes day-wise, maybe 1,000 times a day, maybe 100 times a day. Yes. You don't know. It hasn't got any stable value. Change होता है, लोग डिमांड करते हैं, ज्यादा हो जाता है, लोग डिमांड नहीं करते, लोग बेचना शुरू करते हैं, कम हो जाता है, ठीक है? तो उसकी तो वैल्यू स्टेबल नहीं है। हम यहाँ पे इस चीज की तो बात कर रहे हैं, it has actually a stable market value. So short term investments या marketable, sorry, let's call it as marketable security, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, it's not a cash equivalent. Marketable security is not a cash equivalent. वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी है मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि उसकी चेंजेस में, उसकी प्राइस में, उसकी वैल्यू में बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है? बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, बहुत ज्यादा चेंजेस। हाँ, ये आपसे पूछ सकता है कि ये हो सकता है कि यस, दिस कैन क्वालिफाई एज अ कैश इक्विवेलेंट। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? यस जी, व्हाट इज दिस? सर ये हम बॉन्ड्स ले लेते हैं पैसे देकर, वो जो हम लेकिन पहले ये तो बताएं ना कि ये है क्या। ये कह रहे हैं इनको नहीं पता, आपको नहीं पता? आप लोगों को पता है बाकी? आपने पहले अकाउंटिंग पढ़ी थी? सर ये कैपिटल के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, बैंक्स को मतलब बॉन्ड्स लेके When secure सर्टिफिकेट्स लोग लेते हैं एज एन एसेट तो वो तो ठीक है, कंफर्म कि इट इज एन एसेट। पैसे सिक्योर करने के लिए करते हैं, वो हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जब मेरे पास फालतू पैसे हैं तो वो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं, ठीक है? ओके, ठीक है, वो बात भी आपकी सही है कि पैसे सिक्योर करने के लिए कर सकता हूँ मैं, लेकिन इसका जो मेन फीचर है ना कि ये बहुत छोटे टाइम के लिए है। जो नॉर्मली बॉन्ड्स, आपके दिमाग में कौन से बॉन्ड्स हैं? प्राइस बॉन्ड्स। जो आपके दिमाग में प्राइस बॉन्ड्स है ना, वो एक्चुअली इसमें कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, ठीक है? शायद प्राइस वाला बॉन्ड तो फॉल कर दे कैश इक्विवेलेंट, यस प्राइस बॉन्ड इज अ कैश इक्विवेलेंट, लेकिन मैं जो यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ T, what is T? PQRST, UVW. So T stands for treasury. What is treasury? खजाना। खजाना किसका होता है? हुकूमत का। तो इसका मतलब treasury bond या treasury bill is something which is issued by the government, by the खजाना, ठीक है? So it is by issued by the state, government of Pakistan. तो जो government of Pakistan अपना बिल इशू करेगा या बॉन्ड इशू करेगा उसको ट्रेजरी बिल या ट्रेजरी बॉन्ड बोलेंगे।
थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाद में डिटेल में शायद हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन के कोर्स में आप लोग पढ़ लेंगे इसको एफएमआई में, या शायद बिजनेस फाइनेंस में पढ़ लें, और शायद मैं ही पढ़ा लूँ, पता नहीं, ठीक है, फ्यूचर किसने देखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट जो कि गवर्नमेंट इशू करता है, आप गवर्नमेंट को पैसे दे देते हैं, गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रूमेंट इशू करके दे देता है, इसकी प्राइस रिलेटिवली स्टेबल होती है, शेयर की तरह हर वक्त चेंजेस नहीं आती, हाँ चेंज आएगी लेकिन रिलेटिवली स्टेबल है, इतनी चेंजेस नहीं आएंगी। इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है, आपसे पैसे ले लेता है, 90 दिन के अंदर अंदर ये मैच्योर हो जाएगा, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, और प्लस जो इंटरेस्ट है वो वापस इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्रैक्टिकली इंटरेस्ट नहीं मिलता, प्रैक्टिकली ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं, यानी अगर 100 रुपए का बिल होगा, प्रैक्टिकली 100 रुपए का भी नहीं होता, बिलियंस ऑफ रुपीस में होता है, लेकिन चले 100 रुपीस का अगर बिल है तो आपको मिल जाएगा 95, लेकिन जब वापस होगा तो 100 पे वापस हो जाएगा, तो आपको 5 रुपए बीच में कमाना, ठीक है, गॉट द आइडिया। थोड़ा सा बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको आइडिया दे दे ताकि आइडिया हो, डिटेल में बात करें। गॉट द आइडिया ऑफ कैश इक्विवेलेंट, कि कैश इक्विवेलेंट क्या चीज है? कैश इक्विवेलेंट आर एज गुड एज कैश because they have a stable market value. In case if it's an instrument, financial instrument, it will mature within 90 days. But remember, it will have a stable market value. Chahoge? Let's move on. Okay. Now there is another term which is called as restricted cash. Restricted cash. ये क्या हो सकता है कि कैश भी है और restricted भी है, कैश भी है और restricted भी है। अगर कैश को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो इसका मतलब वो क्या, वो यूज नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे तो कैश आप यूज करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कैश है जो कि यूज नहीं हो सकता, नॉट अवेलेबल फॉर पेइंग करंट लायबिलिटीज, आपके पास है लेकिन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर वो चीज जो आपके पास पड़ी हो और आप उसको इस्तेमाल ना कर सकें, और सर ये नॉन करंट होगा फिर, एग्जैक्टली, अगर करंट की तो डेफिनेशन ही ये थी ना, बाय द वे करंट की डेफिनेशन भी हमने दोबारा सीखी, ठीक है। तो करंट की डेफिनेशन क्या बात करते हैं, अब नाउ इज द राइट टाइम। सो करंट की डेफिनेशन क्या है कि इट्स एन एसेट व्हिच विल give you benefit in the coming 1 year. Now that's a good one, ठीक है, which will give you benefit, या utility आप कहना चाहते हैं, utility is a more economic term so I wouldn't use it, ठीक है, benefit is a good term, आगे देखते हैं इस टर्म का एक और भी अच्छा वर्ड आ जाएगा, ठीक है। ओके सुना, 1 साल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा कैश है आपके पास जो कि इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, तो क्या फिर वो करंट, तो फिर तो वो करंट भी नहीं, तो उसको तो करंट भी नहीं कहना, इट्स नॉट अ करंट एसेट, ठीक है। तो फिर आई विल कॉल इट एज एन इन्वेस्टमेंट, और वो भी फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो है कि 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। So that means it will be a long-term investment, which is a non-current asset या fixed asset. सर एनआरवी को भी तो restricted cash है ना, वो भी तो हम NRV restricted cash, देखें NRV restricted cash नहीं है, NRV तो कैश है ही ना, NRV तो एक्चुअली रिसीवेबल की अमाउंट है, ठीक है, कि रिसीवेबल का कितना अमाउंट मुझे मिलेगा, रिसीवेबल का कितना अमाउंट मुझे मिलेगा, और इसको मैंने अकाउंट रिसीवेबल में इसलिए डाला है क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर मिलेगा। अब अगर मुझे अली कह दे कि नहीं सर आजकल हालात बहुत खराब हैं और आपको पता है मार्केट की कंडीशन इज वेरी बैड, बिजनेसेस खराब हो गए हैं, मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी वो खराब हो गई, मुझे पैसे मिलेंगे 1 साल बाद, और फिर अली कहे कि ठीक है सर मैं आपको भी पैसे दूंगा 1 साल बाद, सो इज इट करंट एसेट एनीमोर? नहीं, तो फिर मैं इस रिसीवेबल को भी एज अ करंट एसेट नहीं लिखूंगा, और मैं इसको अकाउंट रिसीवेबल भी नहीं लिखूंगा, फिर अली के पैसे मैं अलग से करके एक रिसीवेबल क्रिएट करूंगा, दैट रिसीवेबल विल बी अ लॉन्ग टर्म रिसीवेबल, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म रिसीवेबल मेरे पास आ, रिसीवेबल में ही आएगा, लेकिन वो अकाउंट रिसीवेबल में नहीं आ सकता, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल मेरे ट्रेड के रिसीवेबल्स हैं जो मुझे मिल जाते हैं। या एक और तरीका ऑल्टरनेटिव मैं ये करूंगा कि मैं इसके रिसीवेबल को फिलहाल उठा के डाल दूंगा उस एस्टिमेट में जो पैसे नहीं मिलने, और जब ये 1 साल बाद मुझे देगा तो मैं उसको दोबारा उठाकर सही, ठीक है, ये एक और तरीका कर सकता हूं। ओके, फिलहाल इसका रिस्ट्रिक्टेड कैश क्लियर है, इसकी कोई एग्जांपल दिमाग में आ रही है? प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, तो प्रॉपर्टी जो है वो तो ऑलरेडी काम में आ रही है, कैपिटल में क्यों? प्रॉपर्टी इज व्हाट? लैंड और बिल्डिंग, प्रॉपर्टी तो ये आ गई,
और इसका अभी इस कोर्स में एक अलग नाम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका ये अब नया नाम पढ़ेंगे इस कोर्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है फिर तो वो इधर आ जाएगी, कोई और चीज जो को होता कैश है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैश होता है इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बहुत ही एक क्लासिक किस्म की एग्जांपल है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव बैंक अकाउंट्स? बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड। सही सर। हाँ क्या सर रात के टाइम बैंक बंद हो उसको आप क्या करें? तो वो तो क्रेडिट कार्ड हमने क्या कहा कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, करंट नहीं है। सुबह तो कर सकते हैं ना, तो वो तो सिर्फ रात तक करंट है या रात के टाइम के लिए करंट। लिमिट्स। लिमिट्स कौन सी लिमिट्स? क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट, नहीं सर। व्हाट डू यू कॉल इट? व्हाट डू यू कॉल इट? लिमिट सही है लेकिन कौन सी लिमिट है? इफ यू हैव बैंक अकाउंट्स, शायद आपको अंदाजा हो। क्रेडिट डेबिट तो हमें पता होगा कि हमारे अकाउंट में कितना है। मिनिमम मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, देखिए इट इज कैश, कैश है ना, आपने उसको पैसे दिए, वो कहते हैं भाई आपके ही पैसे आपके अकाउंट में पड़े हैं लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करते। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट है कि 5000 इधर पड़े रहेंगे, हाँ जब खत्म करना है फिर यहाँ से दे। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, क्या आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं है कैश, यस, लेकिन क्या करंट लायबिलिटी के लिए पे कर सकते हैं? आपका बिजली का बिल आ जाए, आपने नहीं आ रही है मुझे 2 महीने बिजली का बिल पे करना, वो कहेगा नहीं तब दूंगा जब ये अकाउंट खत्म कर, नहीं तो नहीं दूंगा। सर जो ये क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड ये डेली लिमिट होता है जिसका देखिए वो तो लिमिट है ना, वो तो लिमिट है, आज इस्तेमाल नहीं कर सकते कल तो कर लेंगे ना उसको, तो फिर वो कितने देर के लिए वो रिस्ट्रिक्ट हो गया? 1 दिन के लिए, अगले दिन तो क्लियर है, अगले दिन तो क्लियर हो गया, अगले दिन इस्तेमाल करो, फिर अगले दिन फिर लिमिट पूरी होगी, उससे अगले दिन इस्तेमाल करो। एक दिन के लिए रिस्ट्रिक्टेड किया। 1 दिन के लिए रिस्ट्रिक्टेड कैश है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि अगर 1 दिन के लिए रिस्ट्रिक्टेड कैश है तो क्या वो करंट एसेट है? करंट तो है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये रिस्ट्रिक्टेड कैश इज एक्चुअली नॉन करंट एसेट। जिस तरह सर ये बैंक आपसे ये नहीं कहता कि है ना यार आज नहीं देता कल दे दूंगा, नहीं बैंक ये कहता है ये आपने जो मेरे पास अकाउंट खोला है इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये पैसे इस्तेमाल नहीं हो, मेरे पास पड़े रहे। हाँ अगर जब आप अकाउंट खत्म करेंगे हम आपको ये पैसे आपके दे देंगे। सर अब ये रिस्ट्रिक्टेड है, चाहे 1 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 20, चाहे 1 साल, ये आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। So that's restricted cash. सर एनी अदर एग्जांपल? सर इसके और एग्जांपल हो सकते सर और एग्जांपल हो सकता है सर मैं बताऊं? हाँ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज आर गुड एग्जांपल, जहां भी आपने सिक्योरिटी रखवा दी, ठीक है। स्वी गैस के पास सिक्योरिटी रखवा दी, पेस्को के पास सिक्योरिटी रखवा दी, यूनिवर्सिटी के पास सिक्योरिटी रखवा दी, दैट्स अ गुड एग्जांपल। यूनिवर्सिटी का हाँ 4 साल बाद मिलेंगे, है पैसे आपके ही, हाँ अगर आप जाना चाहें लेकिन नहीं तब नहीं, तब वो आएंगे आप क्यों चाहते हैं, ठीक है। कार्ड लेंगे फिर। सर 1000 रुपीस जब कम होते हैं अकाउंट में तो आप नहीं निकाल सकते, तो वो रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट हो गया। एक बार सर 1000 रुपीस से कम हो जब अकाउंट में तो आप नहीं निकाल हाँ वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, एग्जैक्टली दैट इज रिस्ट्रिक्टेड जी। एनीथिंग एल्स? नहीं, लेट्स मूव ऑन। लाइंस ऑफ क्रेडिट, ये क्या चीज है? लाइंस ऑफ क्रेडिट, लाइंस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट किसे बोलते हैं? कर्ज, कर्ज ना, क्रेडिट कर्ज। लाइंस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट स्कोर सर, आपका क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो आपका होता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर नहीं, वो तो स्कोर है ना, वो तो ये है कि आपने कितना क्रेडिट, आपका हिस्ट्री क्या है जी। एनीथिंग एल्स? क्रेडिट कितना क्रेडिट दे सकता है वो? लिमिट कितना दे सकता है क्रेडिट बैंक आपको, लिमिट। हाँ यू आर क्लोज, यू आर क्लोज। ओके सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर लाइंस ऑफ क्रेडिट। देखिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक, और मैंने अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई, एक्सपेक्टेड, फोरकास्टेड, बजटेड 1 साल के लिए पहले से। अब मुझे पता है कि 1 साल में कितना पैसा कैश इनफ्लो होगा, कितना पैसा कैश आउटफ्लो, मुझे पता है। अब मुझे मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रही है कि मार्च में आई विल बी शॉर्ट ऑफ कैश, मार्च में मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे क्योंकि मैं जितनी पैसे लोगों से लूंगा
जो पैसे मैंने लोगों को देने हैं वो ज्यादा हो गए, ठीक है। तो मैं कहता हूं यार पहले से बंदोबस्त कर। मैं जाता हूं बैंक के पास, मैं बैंक से कहता हूं कि मुझे कर्जा चाहिए। बैंक कहता है ये लो। मैं कहता हूं नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, मुझे बाद में चाहिए। तो बैंक कहता है agrees in advance to lend money, agrees in advance to lend money। पहले से आपको पैसे चाहिए 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, बैंक ने आपसे एग्रीमेंट कर दिया है कि जब आपको पैसे चाहिए होंगे मैं आपको पैसे दे। कितने पैसे बैंक आपको बता देगा, ठीक है, कि जब आपको पैसे चाहिए होंगे मैं आपको 50,000 रुपए दे। सो आई हैव अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 50,000 at 10%, कहेंगे 10% इंटरेस्ट में, सही। दिस इज योर लाइन ऑफ क्रेडिट। फिर आप कहते हैं यार एक तो हो गई, अब किसी और बैंक से भी जाके ले लो, बंदा है जरूरत पड़ जाती है। सो आई गो टू अनदर बैंक, I ask him, I ask the other bank कि मुझे पैसे चाहिए होंगे। Once again, the bank gives me 100,000 at let's say 12%. So these are my lines of credit. ये मेरी lines of credit. ये पैसे मैंने लिए नहीं, इस्तेमाल नहीं की, Backup plan. लोन लिया नहीं। हाँ, एक किस्म का बैकअप या एक किस्म का अश्योरिटी फ्रॉम द बैंक that the bank will lend me money when I need it, whenever I need it, एक साल के अंदर। जब भी मुझे पैसे चाहिए होंगे मैं बैंक से जाके कह दूंगा आपने मुझे कहा था 50,000 दे दें, से 10,000 दे, ठीक है। अब अगर एक ऐसा बंदा जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है और वो जाए लाइन ऑफ क्रेडिट मांगने, तो बैंक शायद उसको लाइन ऑफ क्रेडिट ना दे, या अगर देगा तो एट अ हाफ प्राइस हायर इंटरेस्ट रेट, सर इंटरेस्ट भी हायर होगा, वो इतना कर्ज अभी नहीं देगा और शायद उतना पैसे भी ना दे। जी ये भी अच्छा है, शायद उतने पैसे भी ना दे और रेट भी ज्यादा है क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है, ठीक है। सो क्लियर। अच्छा, अब आपने पैसे अब तक से नहीं, आपने कर्जा ये नहीं किया, तो ये आपका एसेट है, ये लायबिलिटी, ठीक है। क्या आपने कर्जा ले लिया? नहीं। अगर कर्जा नहीं लिया तो ये आपकी लायबिलिटी बना? नहीं। अगर आपने कर्जा नहीं, लायबिलिटी नहीं है तो क्या ये एसेट है? दो ही चीज होती है ना, लायबिलिटी या एसेट। लायबिलिटी नहीं है तो ऐसे ही है। तो एसेट है। एसेट का हमने क्या कहा था कि रिसोर्सेज, अब वापस आते हैं एसेट पे, रिसोर्सेज व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन ओन्स। क्या ओन करता है इन पैसों? क्या ये आपके पैसे हैं? तो फिर तो ये एसेट भी नहीं है। तो फिर आप एक और काम करते हैं जिसको बोलते हैं, इसको ये कभी सुना है? हाँ, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर सुना है? नहीं। ये सुना है? नोट्स टू द अकाउंट्स। नोट्स टू द अकाउंट्स सुना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी देखी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी देखी? नहीं। माशाल्लाह, गुड। And you are students of accounting. Okay. So first thing you need to do, your assignment for today. When you go back home, सब एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी मर्जी आए उसकी बैलेंस शीट, पाकिस्तानी मस्ट बी अ पाकिस्तानी फर्म, ठीक है, पाकिस्तानी लिस्टेड फर्म, उसकी बैलेंस शीट आपने, बैलेंस शीट नहीं, उसकी एनुअल रिपोर्ट आपने डाउनलोड कर लेनी है, आपके मोबाइल में हर वक्त मौजूद, ठीक है, हर वक्त मेरी क्लास में, ताकि आप उसको देख सकें। मैं आपसे कहूंगा चाहिए उठा के देखें अपनी रिपोर्ट में ये कहां पर है, और एक रिपोर्ट लाकर यहां पर रख देनी है ताकि हम उसको देख सकें, ठीक है। कोई सी भी एनी मास अपनी वाली रिपोर्ट आप यहां पे रखें, ठीक है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा और अपनी रिपोर्ट जो आपके पास होगी आप उसको भी देख लीजिएगा, चीजों को समझने में थोड़ी आसानी होगी ना। तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि स्विमिंग इस तरह होती है कि हाथ को यूं करें, फिर एक्चुअली ये होगा कि आप लोग पानी के अंदर होंगे और आप देख सकेंगे कि स्विमिंग किस तरह, ठीक है। ओके, लाइंस ऑफ क्रेडिट। ओके, लायबिलिटी कब बनेगी? जब आप उसको यूज करेंगे लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब उससे पैसे लेंगे तब लायबिलिटी बनेगी। अब अगर लायबिलिटी नहीं है तो वो आपका एसेट भी नहीं है, वो एक किस्म का फॉर्मेलिटी, वो एक किस्म का एक एडेड फीचर है जो आपको मिला है, एक बेनिफिट है आपका। अब अगर आपको पता चले कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 50 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो आप क्या समझेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है?
Frustrated. That's why banks are willing to pay loan. ठीक है? ओके? तो फिर इसका मतलब मैं इन चीजों को अपने साथ लिख दूंगा. कहां पर? बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिख सकता. ये मेरी इनकम भी नहीं है, नहीं लिख सकता. एक्सपेंस भी नहीं है, नहीं लिख सकता. कैश फ्लो भी नहीं है, नहीं लिख सकता. ओनर्स इक्विटी भी नहीं है, नहीं लिख सकता. उसके नीचे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं नोट्स टू दी अकाउंट्स. ये नोट्स होते हैं, डिस्क्लोजर्स इसको. ये वो, ठीक है? यहां पे हम डिस्क्लोज करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अब अगर बैलेंस शीट में मैं सारी इंफॉर्मेशन डाल दूं तो बैलेंस शीट कितने पेजेस की चाहिए? बहुत बड़ी होती है. बैलेंस शीट नॉर्मली कितने पेजेस की होती है? एक. आप जब देखेंगे ना अपनी एनुअल रिपोर्ट्स, आपको नजर आएगा बैलेंस शीट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक पेज की बैलेंस शीट होगी, ताकि कोई भी देखे यूं करके हाँ यार बहुत अच्छी. डिटेल्स नहीं होती. डिटेल्स थोड़ा सा आगे करेंगे, डिटेल्स. ठीक है? नोट्स होते हैं, डिस्क्लोजर्स. तो डिस्क्लोजर में मैं ये चीज लिख दूंगा कि मेरे पास इस वक्त तो पैसे नहीं है, 10 लाख है कैश एंड कैश इक्विवलेंट, लेकिन मुझे बैंक्स ने 10 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी, ताकि अगर मुझे कभी पैसों की जरूरत पड़े तो मैं पैसे कर्जा ले सकूं. ओके? सो अनयूज्ड लाइन ऑफ क्रेडिट इज डिस्क्लोज्ड. ठीक जी. सर जो कंपनीज होती है वो ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए डिस्क्लोज करेगी, क्योंकि ये तो उसकी अच्छी चीज है ना. ये एक अच्छी चीज है, आप पब्लिक समझेगी कि मैं बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हूं, कि मुझे लोग कर्जा देने को तैयार हैं, तो मैं लिख दूंगा. ठीक है? अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा बस मत लिखो. लेकिन अगर कोई मुझे दे रहा है और मेरे पास लाइन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल है तो मैं उसको उठा के लिख दूंगा. ओके? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. इट समराइजेस कैश ट्रांजैक्शंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, includes cash and cash equivalents. ठीक है? ये बात हम पहले कर चुके हैं ना थोड़ी देर पहले. ओके? एंड this is where we need to start from in our next class. ठीक है? Inshallah. So that means we are a bit slow, but then yes you can pause. We are a bit